students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Neo. Students, this video is mainly made for class 12 IP students and computer science students and those who have to appear for term 2 examination. In that, you have to cover MySQL part and some part of computer networks. So in this video, I am going to cover this part: group by clause, having and order by clauses. These three I am going to show you. So the syllabus is in front of you. SQL part will be of 25 marks and computer network will be of 10 marks. So in total 35 marks. So in SQL there are various categories of functions. First is math functions. In this there are par, round and mod functions. Then text functions contains uppercase, lowercase, mid, substring. These three are almost same. आप इनमें से alternatively किसी को भी आप use कर सकते हैं. इनका function output will be same. Then length function, left, right, then in-string function, then L-trim, R-trim and trim functions. These are all text functions. Next category is date functions. Date functions में आते हैं students now, date, month name, year, day name. And aggregate functions के अंदर आते हैं max, min, average, sum, count using count star. And last is querying and manipulating data using group by, having and order by clauses. So I am going to cover these three clauses in this particular video. आपको with examples, with questions आपको मैं explain करूंगी students. So let us start with it. Now first of all you should know the sequence of clauses used. सबसे पहले हमें select clause use करना होता है. After that from, then group by, then अगर जरूरत है condition है, then having clause and in last order by clause. The having clause was added to SQL because the where keyword cannot be used with aggregate functions. जहां भी group by clause use होगा वहां पर आपको अगर condition use करनी है students तो वहां पर आप where नहीं use करेंगे. There you have to use having. Having आपको use करना है and after having आप कोई भी condition specify कर सकते हैं. चलिए in detail आपको with questions में आपको explain करती हूँ. First question आपके सामने अब table is given to you, that is employee table. It contains the fields employee ID, name, gender, salary, department and experience. Okay. If you want to know the sum of salaries, we will write the query as select department, comma, sum of salary as salary from employee, group by department. See here, group by clause has been used. आपको इन parts में आपको clear करती हूँ. Select के बाद हमेशा आपको कॉलम्स के नेम या एट्रीब्यूट्स के नेम आपको देने होते हैं जो आपको डिस्प्ले करवाना है. आपको क्या डिस्प्ले करवाना है? एक तो डिपार्टमेंट, सी द रिजल्ट डिपार्टमेंट, और दूसरा सम ऑफ सैलरी एज सैलरी. एज के बाद हमेशा हम एलियास नेम देते हैं. व्हाट इज एलियास नेम स्टूडेंट्स? जो हमें आउटपुट में शो करना होता है. अगर मैंने एज के बाद यहाँ पर दिया होता सम ऑफ सैलरी तो यहाँ पर वो शो करता आउटपुट में सम ऑफ सैलरी. सम ऑफ सैलरी ये क्या है? आपका एग्रीगेट फंक्शन है. फ्रॉम एम्प्लॉय, सेकेंड आपका आता है सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय. देन ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय के बाद आपको देना होता है कॉलम का नेम, जिस कॉलम को आपको ग्रुप बाय करना है. जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट में क्या है? इंजीनियरिंग, HR, सेल्स, मैनेजमेंट, देन अगेन इंजीनियरिंग. ये आपके तीनों जो है दे आर कमिंग अकरिंग ओनली वंस, लेकिन इंजीनियरिंग आपका 2 बार आ रहा है तो इसको वो ग्रुप बाय कर देगा और जो वंस आ रहे हैं उनको भी वो शो करेगा. सी द रिजल्ट. इंजीनियरिंग सैलरी इज 14,000. हाउ कम? ये देखिए इंजीनियरिंग में एक बार सैलरी 5,000 थी और एक बार है 9,000. सो एडिंग दीज टू सम ऑफ सैलरी आपके सामने क्या आ गया? 14,000. देन HR आपका सेम था 37,000. देन मैनेजमेंट 43,000 एंड इन द लास्ट आपका है सेल्स 56,000. क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक और आपको क्वेरी में बताती हूँ आपको. इफ वी नीड टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट्स वेयर द सम ऑफ सैलरीज इज 50,000 और मोर. अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आपके सामने आ गई है. इन दिस कंडीशन वी विल यूज हैविंग क्लॉज. सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ सैलरी एज सैलरी, सेम एज बिफोर, सेम क्वेरी है. देन फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, अभी तक तीनों सेम है. अब लेकिन कंडीशन अप्लाई करनी है. सो हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000. अब 50,000 से ग्रेटर कौन सी? आपके दो हैं. ये देखें आपके, एक है 1,40,000 और एक सेल्स है 56,000. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ग्रुप बाय और हैविंग आपने दोनों यहाँ पर यूज किए हैं. क्वेश्चन 2, कस्टमर्स टेबल मैंने यहाँ पर लिया स्टूडेंट्स. ID, नेम, एज एंड एड्रेस, 4 एट्रीब्यूट्स आर देयर. देन
एसक्यूएल में आपने क्या क्वेरी यहाँ पर लिखी है, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा एड्रेस। रिजल्ट देखिए, आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस। जो कॉलम्स के नेम आप यहाँ इस सिलेक्ट के बाद आप लिखेंगे वही आपके सामने डिस्प्ले होंगे आउटपुट के अंदर या रिजल्ट में। फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स इज द नेम ऑफ द टेबल। ग्रुप बाय एज, एज के अकॉर्डिंगली हमें ग्रुप करना है। एज देखते हैं कौन कौन सी है, 32, 25, 23, 25। देखिए 25, 25 अगेन, 27, 22, 24। तूने ग्रुप बाय किया एज। देन हैविंग काउंट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन जिसकी भी इक्वल या 2 टाइम्स के 2 के इक्वल हो या ग्रेटर देन 2 हो, तो दो बार कौन सी आपके सामने आ रही है यहाँ पर, जो 25, 25 यहाँ पर दो बार आ रही थी आपकी, ये देखिए आपके सामने। तो आपको शो क्या करना है, आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस। आईडी आपके सामने क्या आ गई, 2 नंबर, ठीक है। देन नेम इज खिलान, आपके सामने देखिए दो बार आ रहा है, लेकिन आपके अगर दो से ज्यादा जितना भी ग्रुप बाय करेगा तो उसमें फर्स्ट वाले का आपको वो सारी डिटेल देगा, खिलान। देन एज इज आपकी 25 है, एड्रेस इज दिल्ली। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट आपके सामने थर्ड क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ विद द टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय सिटी। इफ यू वांट टू ऐड द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ईच सिटी, आपको इंडिकेशन, मैं आपको एक क्लू देती हूँ। अगर आपको क्वेरी के लिए आपको लिखा जाता है ईच सिटी या सिटी वाइज, तो ये दो वर्ड आपको इंडिकेट करने हैं कि आपको ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना है इस क्वेरी के अंदर। नाउ क्वेरी आपकी कैसे बनेगी इसके स्टूडेंट्स, सिलेक्ट सम ईएमपी सैलरी, ईएमपी सैलरी के अकॉर्डिंग हमें इसका सम करना है, कॉमा ईएमपी सिटी। ये देखिए सम ऑफ ईएमपी सैलरी आपका सेम आ गया, यहाँ पर मैंने एलियास नेम कुछ नहीं यूज किया था। देन ईएमपी सिटी, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम, देन ग्रुप बाय ईएमपी सिटी, ईएमपी सिटी के अकॉर्डिंगली ग्रुप बाय करना है। सिटीज के नाम देखते हैं, गोवा, दिल्ली, जयपुर, गोवा, दिल्ली। तो दो सिटीज आपके रिपीट हो रही है यहाँ पर, गोवा एंड दिल्ली, गोवा एंड दिल्ली। अब देखिए आपके सामने सिटीज के नेम क्या क्या आ रहे हैं, गोवा, दिल्ली एंड जयपुर। गोवा का कितना एम्प्लॉय सैलरी हो रही है आपके सामने, 4000। यहाँ पर गोवा की कितनी थी, 2000 एंड अगेन 2000, सो इट बिकम्स 4000। दिल्ली की 9000 कैसे आई, 4000 यहाँ पर दिल्ली की है, देन अगेन 5000, सो टोटल 9000। एंड जयपुर अकर्ड ओनली वंस, तो उसके 8000 यहाँ पर उसने शो कर दी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको अलग से क्वेरी बताई है विद कंडीशन। Suppose that you want to show those cities whose total salary of employees is more than 5000. इसके अंदर बाकी तो सेम है, सिलेक्ट क्वेरी, देन फ्रॉम क्लॉज, ग्रुप बाय ईएमपी सिटी। यहाँ पर हैविंग हमने यूज किया है, जैसे आपको पहले बताया था। हैविंग के बाद मुझे कंडीशन देनी है जहां पर टोटल सैलरी मींस सम ऑफ सैलरी, ये एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, ईएमपी सैलरी ग्रेटर देन 5000। ओके, ग्रेटर देन 5000 कौन कौन सी थी, एक दिल्ली की और एक जयपुर की, 9000 एंड 8000 respectively. Okay. Question number 4. एक टेबल लिया है मैंने, स्टूडेंट्स डिटेल्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड एज। सपोज यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द अबव टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एज। ये देखिए अकॉर्डिंग टू देयर एज, तो ग्रुप बाय मुझे क्या करना होगा, एज। सिलेक्ट काउंट रोल नंबर कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, टेबल का नेम, ग्रुप बाय एज। रिजल्ट आपके सामने क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, काउंट रोल नंबर और एज। अब एज के अकॉर्डिंगली उसे काउंट करके बता दिया, 20 एज में कितने स्टूडेंट्स थे, 3 थे, 19 वाले 2 हैं, 17 वाले 1 हैं, 18 वाले 2 हैं। ये आपका यहाँ पर काउंट फंक्शन मैंने यूज किया है, ये एक आपका एग्रीगेट फंक्शन है। नाउ सपोज दैट यू वांट टू शो द एज ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज मोर देन एंड इक्वल्स टू 2। अब इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, आई हैव टू ऐड हैविंग क्लॉज, हैविंग काउंट रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए 2 के इक्वल या ग्रेटर, तो 2 वाले ये दो केसेस हैं और एक 3 वाला है। 3 वाले कितने हैं, 20 एज वाले 3 हैं एंड 19 एज वाले 2 हैं एंड 18 वाले भी 2 शो कर दिए उसने, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कंडीशन दी थी यूजिंग हैविंग क्लॉज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टेबल एम्प्लॉय मैंने यूज किया है। नाउ एनालाइज द हैविंग क्लॉज विद मिन एंड मैक्स एग्रीगेट फंक्शंस। आपके सामने एम्प्लॉय आईडी, नेम, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज गिवन। अब मिन एंड मैक्स के साथ में हम कैसे इनको यूज करेंगे, देखिए इफ यू वांट टू शो ईच डिपार्टमेंट एंड मिनिमम सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। अब देखिए मिनिमम सैलरी एंड ईच डिपार्टमेंट, ये देखिए आपके सामने आ गया। तो ग्रुप बाय मुझे क्या लेना है, डिपार्टमेंट जो नेम है, इसमें कौन से डिपार्टमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, फाइनेंस, एचआर, कोडिंग, एचआर अगेन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मार्केटिंग, देन कोडिंग अगेन आ गया, देन फाइनेंस। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट मेन ऑफ सैलरी कॉमा एम्प्लॉय, ये दो आपको फील्ड्स आपको डिस्प्ले कर रहे हैं रिजल्ट में। फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब जैसे फाइनेंस है उसका मिनिमम सैलरी कितनी आ रही है 8000, फाइनेंस में देखिए कितनी है 9000, देन फाइन इसके अंदर है 8000, सो मिनिमम कौन सी हो गई 8000। इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन द एचआर डिपार्टमेंट, एचआर में कितनी है 4000 एंड 5000, विच इज द लोएस्ट, विच इज द मिनिमम स्टूडेंट्स, दैट इज 4000। सिमिलरली आगे भी आपका कोडिंग है, तो इस तरह से आपका ये मेन फंक्शन चला है। सिमिलरली आप मैक्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे मैंने कुछ कंडीशन भी ऐड करनी है। Now suppose that you want to show only those departments whose minimum salary of employees is greater than 4000. 4000 से ज्यादा वाले कितने हैं, ये दो हैं जिसमें 8000 10,000 आ रहा है। सैलरी कैसे आप फ्रेम करेंगे, हैविंग मेन ऑफ सैलरी EMP सैलरी ग्रेटर देन 4000। आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, सिलेक्ट, देन फ्रॉम, देन ग्रुप बाय, देन हैविंग। इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट मैक्स एंड मेन फंक्शन, अब मैक्स और एवरेज को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ देख क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, टीचर्स एक टेबल है। अब इसके अंदर आपके सामने मैंने इस पर बेस आपको कमांड्स लिखनी है, 4 आपको एसक्यूएल कमांड्स बनानी है। फर्स्ट, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट IT टीचर्स। ये देखिए आपकी IT टीचर्स यहाँ से आपको कहाँ से मालूम चलेगा, सब्जेक्ट देखकर, जैसे कंप्यूटर। To list the details of all teachers who are getting salary between 20,000 to 35,000. सैलरी देखिए 20 and 35,000 between this and this, लेकिन आपको इनको दोनों को इंक्लूड करना है। To display the subject of all the teachers whose age is more than 40 years. आपको एज देखनी है मोर देन 40 वाले जितने हैं 42, 50, 44, तो उनका क्या करना है, उनका सब्जेक्ट डिस्प्ले करना है कि वो साइंस है या जो भी, जैसे कि 50 में साइंस है, 44 में कंप्यूटर है। Then next is to display the list of names of all the teachers in alphabetical order. अब देखिए यहाँ पर आपका क्या यूज होगा, ऑर्डर आ गया आपका अल्फाबेटिकल। आई एम गोइंग टू यूज हियर ऑर्डर बाय क्लॉज। अब देखिए दो क्वेरी मैंने एट अ टाइम ली है। टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट IT टीचर्स, तो क्वेरी क्या आप फ्रेम करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर सेमीकोलन। सेकेंड इज to list the details of all the teachers who are getting salary between 20,000 to 35,000. तो इसका आंसर क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 35,000। तो दोनों यहाँ पर आपके इंक्लूड हो गए, आपके दोनों अपर एंड लोअर रेंज आपने इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है, ठीक है। वहां आप बिटवीन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। Now next two parts, to display the subject of all the teachers whose age is more than 40 years. Select subject, क्या display करना है, subject from teachers, teachers the name of table where age greater than 40. To display the list of names of all the teachers in alphabetical order. So अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि हमें असेंडिंग चाहिए डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट इट टेक्स असेंडिंग। अगर आप लिखना चाहें तो आप ASC भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, ऑर्डर बाय नेम। तो यहाँ देखिए आपने कुछ बताया नहीं है, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वो असेंडिंग दिखाएगा। अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो DESC आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आफ्टर दिस कॉलम नेम। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है, ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। Order by keywords sorts the results in ascending order by default. To sort the results in descending order, use the DESC keyword. Okay students, अब देखिए आपके सामने यहाँ पर आपने दिया select star from students, order by names. स्टूडेंट टेबल के अंदर ऑर्डर बाय नेम्स, यहाँ पे WYHTBN मैंने जब यहाँ पर दिया ऑर्डर बाय नेम्स, तो रिजल्ट क्या आ गया, AA अजय, अमिता, B से बबीता, GHNRTWY। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय के बाद में आपको कॉलम का नेम देना होता है। एंड देखिए एक और देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दिया है नेम्स एंड डिसेंडिंग नेम्स DESC। देखिए यामिनी, वुस्का, टीना, राहुल, A नीचे आ गया, A देन B देन G, ये आपका डिसेंडिंग में आपको शो कर दिया। सिलेक्ट स्टार मींस ऑल द रिकॉर्ड्स इट इज शोइंग। अब देखिए रोल नंबर का मैंने डिसेंडिंग में दिया है। देखिए पहले रोल नंबर्स क्या थे, 7, 9, 5, 10। यहाँ देखिए 10, 9, 8, 7, 6। क्लियर। ये स्टूडेंट्स सॉरी, ये कुछ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं।
लेकिन स्टिल मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप इस तरह से आप कुछ इन पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, जैसे डेटा इंटीग्रिटी क्या है, तो आपको यू शुड नो द आंसर्स। डेटा इनकंसिस्टेंसी, कंपोजिट प्राइमरी की, रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू डीबीएमएस, ये माइस्क्यूएल से रिलेटेड है। ये आप लोगों को हम लोग फिट हैं तो हम लोगों को ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बट सर जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है? It's very important as there are multiple databases in a DBMS. DBMS क्या है? Database Management System. It means all data is accurate and consistent in the database. Inconsistency क्या होती है डेटा की? It is when the same data exists in different forms in multiple tables. Same data different forms में दिखाई दे रहा है आपको multiple tables में, which provides unreliable or meaningless information. अगर different चीज आपको दिख रही है tables में same data, तो नेचुरली आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होती है? इसको कॉम्पोजिट की भी कहते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की फॉर अ टेबल। 2 और 3 कॉलम्स को मिलाकर भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं टेबल के लिए। अगर आपको एक कॉलम सफिशिएंट नहीं लगता है प्राइमरी की के लिए, आपका पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, तो रिलेशनशिप आपके सामने जो होते हैं वो एसोसिएशन होता है बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। ये आपके सामने 3 टाइप का होता है, 1 to 1, 1 to many या many to 1, वाइस वर्सा हो गया, एंड many to many. Okay. So I'm going to end here this video. I hope आपको बहुत पसंद आई होगी।